अब हम चाहेंगे कि राजस्व सचिव हसमुख अदिया साहब से एक छोटा सा सवाल कि जीएसटी लागू हुए 12 घंटे का समय हो चुका है, कैसा रहा है 12 घंटे का सफर? 12 घंटे का सफर अब तक कैसा रहा है जीएसटी लागू होने के बाद? धन्यवाद शिशिर। मैं भी इस मौके पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट और उनके सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। क्योंकि जो सफ़र की शिशिर बात कर रहे हैं, उस सफ़र में ये इंस्टीट्यूट और उनके सदस्य हमेशा हमारे साथ रहे हैं। जब जब हमने जीएसटी का लॉ या रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव हमको इंस्टीट्यूट की और उनके सदस्यों की तरफ से ही मिला है। एक तरह से कहे तो ये लॉ और रूल्स बनाने में उनका बड़ा योगदान है, तो उसको मैं यहाँ एक्नॉलेज करता हूँ, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। जीएसटी की सफ़र तय करने में हमको समय इसलिए न लगा और अच्छी तरह से ये सफ़र तय हो गई क्योंकि एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति हमारे पीछे थी। तो अधिकारियों के लिए ये डिफ़िकल्ट काम नहीं था कि जब राजकीय इच्छा शक्ति थी तो हमने तुरंत अपनी टीम को साथ लेके सबने काम बांट के, सबने काम मिलके, कंधे से कंधा मिला के हम समय के अंदर ये काम पूरा कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ट्रेड और इंडस्ट्री से आगे थी और ट्रेड और इंडस्ट्री ये कह रहे थे कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। Feeling of positivism on two stellar aspects of our democracy and our society. Let me take this overwhelming occasion to just briefly outline that for you. One is the display of maturity of the democratic system. In 1991, it started as part of the reforms agenda presented by Dr. Manmohan Singh as Mr. P.V. Narasimha Rao's FM in 1991 and was simply called the value-added tax. It then traversed 16 years, 5 prime ministers and 6 union finance ministers. Prime Minister Vajpayee set up the GST panel in 2000, headed interestingly by the then left finance minister, Dr. Ashim Dasgupta of West Bengal. Thereafter, Congress brought it to the House. The Trinamool Congress finance minister was requested by Shri Jaitley to head the states panel. And finally, Prime Minister Modi, our finance minister, Mr. Jaitley, and his very, very illustrious team rolled it out. You cannot get a more resounding success of India's democratic process than this degree of political pluralism. It is often said that democratic processes move slowly, but the GST process indicates that they certainly move surely. As we can see with the multiplicity of complexities involved, it does reflect the age-old saying that the mills of God grind slowly, but they grind exceeding small. It is a moment. शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल है जहां पर देश के बड़े पैनलिस्ट और उनके साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो देश को बता रहे हैं कि जीएसटी आ जाने के बाद देश को कैसे मिल रहा है इसका फायदा। About GST before a community that talks about numbers day in and day out. So I'll just give a macro picture of Indian agriculture. Indian agriculture ranks second in the world. That's the kind of rank that Indian agriculture sector enjoys globally. And if you ask me what is the rank of India's services sector, it is number 11, and manufacturing sector is number 12. So it is the farmers of India who have taken India to a very, very high level globally. Now, basically I'm an agronomist and I'm heading a team of people in my company doing policy analysis. We are highly optimistic that with the introduction of GST,
And with the dissolving of the internal trade barriers, it's bound to be a biggest boon ever given to Indian farmers. And our own analysis shows that this will considerably aid the government efforts to increase, to double the farmers' income by 2022. Now, having said this, since I said I will also drop some numbers, traditionally our farmers have taken the Indian agriculture GDP phenomenally. For example, from 2000 to 2014, the agriculture GDP almost tripled because the production has shifted from traditional food grains to dairy products and horticulture. Now, these are all highly sensitive to long transport or delay in transport. With dissolving the traditional barriers between the trade among the states in India, this will improve the efficacy of marketing, resulting in better revenue. So we are highly hopeful that if there is one sector that stands to benefit a lot with introduction of GST, it is the Indian agriculture sector. Shortly, we are publishing a paper as to how this will be realized sooner than what most people realize. Thank you very much. The farm sector will greatly benefit. Dr. Adia, I have a question for you, which is on top of mind of industry and businesses to quite an extent, which is how would the anti-profiteering provision be used? Will the government be very aggressive, or how is it going to work out? Well, ऐसा है कि काफ़ी चर्चाएं हो रही है मीडिया में एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज के बारे में। हर जगह हम ये सफाई देते आए हैं कि ये क्लोज ऐसा नहीं है कि जो हम हर छोटे व्यापारी के साथ यूज़ करेंगे। ये क्लोज ऐसा नहीं है कि जो हर होलसेलर के साथ हम यूज़ करेंगे। ये जो क्लोज है वो बेसिकली डिटरेंस के लिए रखा गया है। किसी भी देश में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि ट्रांजिशन हो रहा है जो टैक्स का, उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ज़्यादा पैसा चार्ज करे। नाउ ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे और एंटी प्रॉफिटियरिंग कोई इंस्पेक्टरों द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो है वो एक ऑटोनमस अथॉरिटी होगी और उनको मदद करने के लिए कुछ एक्सपर्ट अकाउंटिंग के ऑफिसर्स होंगे जो कि सरकार के पार्ट होंगे। तो जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो बैक ऑफिस में ये हमारी जो विंग है वो करेंगे और फाइनल ऑर्डर करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। तो इस तरह से ये बड़े लोगों के लिए है। मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो कि मास प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे गुड्स बना रही है जो कि पूरे देश में बिका जाता है, और ऐसी कंपनी ने मान लो रेट कम होने के बावजूद या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के बावजूद अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मतलब उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी कटौती कंज्यूमर को पास डाउन नहीं की, तो उस केस में ही ये प्रोविज़न का उपयोग करेंगे। ऐसा हमने पहले भी कहा है, अब भी हम कहना चाहते हैं, इट इज़ टू बी यूज्ड स्पेरिंगली बट अगेंस्ट बिग पीपल एंड दैट ऑल्सो आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं वित्त मंत्री जी। एक सवाल जो कि कई लोगों ने भेजा है कि देश के तमाम राज्यों में इकलौता जम्मू एंड कश्मीर है जिसने अभी तक जीएसटी के लिए जो कानून है उसको मंजूर नहीं किया है। ऐसी सूरत में वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबारी, उन पर क्या असर पड़ेगा? वित्त मंत्री साहब आपसे। जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि
सारे देश में कल रात से ये कानून लागू हो गया है और जीएसटी की एक व्यवस्था पूरे देश में इस्टेब्लिश हो गई है। हम लोग पहले दिन से ही प्रयास कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर भी जीएसटी चेन का एक अंग बने। जम्मू कश्मीर कंजम्पशन स्टेट है। दूसरे राज्यों का मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस सामान जो है वो जम्मू कश्मीर में बिकता है और स्वाभाविक है कंजम्पशन स्टेट के नाते DNK जब जीएसटी का हिस्सा बनता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैक्सेशन का शेयर भी उनका बढ़ेगा। दूसरा उनको लाभ ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सामान बिकेगा वहां के कंज्यूमर्स को भी इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा और उसको टैक्स एक बार ही देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने विधानसभा के सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ लोगों ने विरोध किया इस आधार पर कि भाई इससे राज्य का फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भारत के साथ हो जाएगा। और मुझे खेद है इस बात का कि जो हमारे एम्पावर्ड कमेटी के फाइनेंस मिनिस्टर्स के अध्यक्ष थे, जो जीएसटी की वकालत देश भर में कर रहे थे, जो जब मैं वित्त मंत्री बना तो वो अध्यक्ष थे, JNK के ही थे, विरोध करने वालों में उनकी भी मैंने आवाज सुनी। तो इसलिए मैंने तो सबसे बात की, वहां के मुख्यमंत्री से भी की, राज्यपाल से भी की, ओमर अब्दुल्ला साहब से भी की जो विपक्ष के नेता हैं, कि भाई आप अपने राज्य को लेकर आइए इसमें, अगर नहीं लाएंगे तो इसके क्या असर होंगे कि जो सामान जम्मू कश्मीर में बिकेगा बाकी देश की तुलना में महंगा होगा और आपके यहां रहने वाले लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा कि उनको टैक्स 2 बार देना पड़ेगा। दूसरा असर यह होगा कि मान लीजिए मैं श्रीनगर या जम्मू में हूं और मुझे कार खरीदनी है और वहां कार महंगी मिलती है तो मैं पठानकोट में कार खरीद के वहां पे लेके जाऊंगा। तो जब तक जीएसटी लागू नहीं होगा तो आसपास के प्रांतों में लाभ होगा और वहां के अपने व्यापारियों को नुकसान उसका होगा। तो आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं जिसमें आपके यहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ आएगी? तो सरकार ने तो कहा है कि हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट करने की और कुछ दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू और कश्मीर इसमें इंटीग्रेट कर लेगा। कुछ लोग विरोध करेंगे लेकिन विरोध के साथ भी लोकतंत्र चलता है, कारवां तो आगे चलना ही है और जैसे देश भर में भी चला कुछ लोगों के विरोध के बाद, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।